ओम शांति सर। Imani, can you check how many members are there in audit? Imani, are you there? मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir, you're audible. Yes, अच्छा, you are audible. सर Okay. That audit meeting is going on, na? Closing meeting. Right, So, sir. so we need to start or when's Sir, I've messaged in the group. Let me see if anyone responds. चिरंजीव ने तो मैसेज किया है audit closing meeting is on. So, yeah. Most of the people are there, then we can change, मतलब start bit late. Sir, I'm not aware of the timings of the meeting for audit. If you can update me, then मैं उस हिसाब से इसको reschedule कर दूंगी. Closing meeting, let me check the timings. It was 2:30 to 3 only. So it should maybe in few minutes, I think, should be over. Six people have read my message.
Sir, by 3 p.m. it should have been closed, but it's still going on. So maybe by 3:15, others will join and we can proceed with the session for now. Okay, let's wait for 2-3 more minutes and then we will start. Right? Okay, sir. Yes.
आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर, दिन है सुंदर सा। आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर, मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग, लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर, दिन है सुंदर सा। आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से, बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर, दिन है सुंदर सा। आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल, बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर, दिन है सुंदर सा। आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर, दिन है सुंदर सा। आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर, दिन है सुंदर सा। आज कुछ कर गुजर। So we'll start with the 3 minutes of meditation as usual. So just take your positions. Just sit upright and relaxed. And you need to just follow the guidelines on the screen. So step number 2 is about attention and the concentration. Just pay attention to your natural breathing. No efforts on breathing. Just observe it the way it is. Your attention should be on your breathing only. So wherever your mind is, just bring it to your breathing only. Step number 3 is reflection.
you need to experience the freedom, 100% freedom, like this eagle. You may reflect on if there is any bondage in your mind, but set yourself free from those bondages. Step number 4, affirmation. So you can just, affirmation is about what you can say, giving suggestions to your subconscious mind, because you're already relaxed now, you are in the present moment, and your subconscious mind is bit activated. So whatever you think at this moment will become a part of your program. So just give these positive affirmations to your mind that I'm a happy being and it is my original quality. Yeah. So good afternoon, everyone. So ये meditation practice जो है, it will be the part of your daily life now. So अभी जो हमने किया 3 मिनट के लिए, कौन कौन उसको एक्सपीरियंस कर पाया? Means who could concentrate on the breathing, who could experience that freedom, and who could give those positive affirmations to your mind? सर लास्ट वाला ब्रेक हो रहा था, पहले तो वो वाले तो ठीक थे। So how many? Only 1, 2, 3. बाकी लोगों का कोई कंसंट्रेशन नहीं हो पाया क्या 1 मिनट का भी? ओके, +3. So yeah, so अभी तो सभी का आ गया। गुड। So that is the practice, means हमें अपने माइंड को ही कंट्रोल करना है पहले तो, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग आवर माइंड। उसको डायरेक्शन देना है कि भैया ब्रीदिंग पे फोकस करना है, तो ही हैज टू डू दैट, है ना? मीन्स वी आर द मास्टर ऑफ आवर माइंड, नॉट द अदर वे. So slowly we will control our mind also.
if it always, अगर वो नहीं कर रहा तो then it's a problem, but it will. So we start with our session. So I'll just share, means इसमें recap भी हो जाएगा. I'm sharing the journey, how this journey will be, how it was so far and how it will be in the future. So we started with defining the happiness. One is the short-term happiness and the lasting happiness, which is eudaimonic happiness. Hope everyone is clear about this. What is hedonic and eudaimonic happiness? नहीं है तो जाके सर्च कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं. किसी को क्लैरिटी नहीं है अगर. We saw one video of that rat race wala, and we discussed about hedonic treadmill theory also. Second, we measured our own baseline through some psychometric scales. इसमें वो करीब 11 डायमेंशन है पॉजिटिव इमोशंस की हमारी, एंड 3 डायमेंशंस हमने नेगेटिव इमोशंस क्या लिया तो डास टेस्ट, which is nothing but depression, anxiety and stress. So I have the sheets of almost everyone. Himani can check again कि किसी ने नहीं शेयर किया है तो that is for you only. You will be knowing what is your baseline, how you are progressing. Once we are through with this 30 days program. And for past few days, we were analyzing the cause of unhappiness or the root causes of unhappiness. So there are so many causes. We were discussing few, like various mindsets or the mind patterns that we are normally caught into, like aunt mindset or the beggar mindset or the slave mindset, जो हमें खुश नहीं रहने देते लाइफ में. और भी हैं बट इस तरह के मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि और भी क्या हमारे कोई इस तरह के पैटर्न्स हैं हमारे माइंड में जो कि हमारी खुशी को ले लेते हैं हमसे, राइट. तो इसमें वी कैन, अगर इफ एनीवन हैज मीन्स थॉट और इफ समवन वांट्स टू शेयर और रीकैप कि व्हाट आर दिस माइंडसेट्स, दैट विल बी गुड फॉर अदर्स जो लोग नहीं अटेंड कर पाए. Anyone? So I so, would request everyone to please switch on your cameras if you can. ठीक है. So we discussed about aunt mindset, which is very limited vision and being busy throughout the day. aunt से कोई पूछता है क्या कर रहे हो तो कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, है ना. और मतलब व्हाट इज द पर्पस, वो कहते हैं कि आज मैंने मतलब कितना खाना इकट्ठा करना है अपने लिए, दैट इज माय होल लाइफ इज अबाउट एंड दैट इज द हैप्पीनेस फॉर मी, है ना. तो देन वी सॉ द ईगल माइंडसेट. ईगल इज ऑलवेज इजी while doing everything. It's a symbol of higher consciousness. We have to be in eagle consciousness, doing everything, but being happy, right? And having very broad view, bigger picture always in front of us. And we take very fast decisions, right decisions, and enjoying the life, just flying, being free. So that was about the eagle mindset. That is a higher consciousness. And the beggar and prince mindset, although we may have a lot of money, we may have everything that we need, we want in our life, but still we are like beggars sometimes, seeking more and more. And although we are all prince in our life, but prince again is a
symbol of higher consciousness. Prince is when prince comes out of his that महल बंगला, तो वो एक ही माइंड एक ही थॉट के साथ निकलता है कि मैं आज कितना दे सकता हूँ दुनिया में सभी लोगों को या सभी जो भी हैं मेरे कांटेक्ट में आते हैं। बेगर जब घर से निकलता है तो वो ये सोच के निकलता है कि मैं कहाँ जाऊं जहां मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा इकट्ठा कर मतलब दान ले सकूं, इकट्ठा कर सकूं। सो वी आर गिवर्स एक्चुअली, हमें देने में खुशी मिलती है क्योंकि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो देने का ही होता है, ओरिजिनल क्वालिटी देना का ही होता है हमारा। जिसको कहते हैं ना कि देवता का मतलब ही होता है देना, है ना। तो हम लेते ही नहीं है, हम देवते हैं, देवता की वंशावली है। तो उसी में हमें खुशी मिलती है देने में। तो वो चेक करना है कि हम अगर बैगर बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बैगर बन जाते हैं लाइफ में, तो क्यों बने हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया। बॉन्डेजेस, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स इस दुनिया में मतलब हैं, तो हम लोग की कुछ डिजायर्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा था कि हाउ बॉन्डेजेस टेक अवे आवर हैप्पीनेस। जब तक हम डिजायर रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं होती है तो हम एक स्लेव की पोजीशन में रहते हैं। तो और जो अगला पर्सन भी हो सकता है, कुछ नेचर में कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है। तो जब तक हमारी वो डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो हम स्लेव की पोजीशन में रहते हैं और अगला पर्सन जो है वो हमारा मास्टर बन जाता है या सिचुएशन हमारी मास्टर बन जाती है। तो स्लेव कैन नॉट बी हैप्पी, स्लेव्स कैन नॉट बी हैप्पी, बेगर्स कैन नॉट बी हैप्पी। तो हमें वो माइंडसेट्स को समझना था, तो हमने वो कुछ समझे हैं, कुछ माइंडसेट्स। एंड so we closed that session. So this is about journey. We have to move from here to here, and we closed this session, previous session, with this question as a homework. If someone has done this, or maybe has given a thought to this, you can share. आप बता सकते, we can just discuss on this so that we move on from here. सब कुछ करते हुए भी क्या हम एक्सपेक्टेशन से फ्री रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं डिजायर से? इज इट पॉसिबल इवन? पॉसिबल बट टफ। अगर रिजल्ट पे फोकस ना करके एफर्ट पे फोकस करें। तो रह सकते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन फ्री रह सकते हैं? सर मैं समझता हूँ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते मेरे हिसाब से। देखो कुछ ना कुछ तो रहेगा। जिंदा रहने की भी एक्सपेक्टेशन भी एक एक्सपेक्टेशन ही है। ये भी मैं और जी लूं तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन है। तो जीरो तो नहीं हो सकता, जस्ट एक थॉट है। Okay, so let's move on from here. Let us see if we can be free from expectations, because expectation is the cause of unhappiness. Expectation अगर हमारी है सिचुएशन से, लोगों से, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो तब तक हम हैप्पी नहीं रह सकते हैं। We will be slave. So we will find some way out of this, how to remain free from expectations while doing everything. जिंदा भी रहने के लिए बिना एक्सपेक्टेशन के क्या जिंदा तो क्या खुश रह सकते हैं क्या? कैन वी अचीव ऑल आवर गोल्स, है ना? कैन वी कीप ऑल आवर पीपल हैप्पी? इज इट? लेट अस सी, एक्सपेरिमेंट है, वी विल डू।
let us understand few things. So see, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी, है ना? इट इज नथिंग बट कि हम जब कोई न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, कोई भी लाइफ में, है ना, तो हमारा माइंड फिर वापस उसी स्टेट में नहीं जाता है, वो न्यू एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कि आप कोई न्यू प्लेस पे जब फर्स्ट टाइम जब नया किसी प्लेस पे जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस आता है, तो नाउ इट इज एम्बेडेड इन योर माइंड नाउ दैट एक्सपीरियंस, है ना, आप उसको अनडू नहीं कर सकते उस एक्सपीरियंस को। सिमिलरली न्यू बॉर्न है, आपकी फैमिली में एक नया मेंबर आया, तो दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं अब उस एक्सपीरियंस से हम मतलब उसको कैसे अनडू करें। सो व्हेनेवर वी स्ट्रेच अवर माइंड, है ना, टू एनी न्यू एक्सपीरियंस, so that becomes a part of our mind. That new experience adds means something in our mind. So that is how we grow, है ना, new challenges हैं, whenever we experience, so एक neural pathway बनता है हमारे mind में, और जब हम उसको बार बार करते हैं तो it becomes a part of our programming also. So अभी तक जो हमने हमारे जितने भी माइंड सेट्स थे वो हमारे न्यूरल पाथवेज थे, हम वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही देखते हैं दुनिया को, वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया को। तो अगर हमें, और वैसे हैप्पीनेस का हमारा जो डेफिनेशन था या हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने का जो हमारा मेथड्स थे, है ना, वो वैसे ही चल रहे हैं, सालों से वैसे ही चल रहे हैं, है ना। स्टिल हमने सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्टिल वी आर सीकिंग हैप्पीनेस। तो मतलब अगर फर्स्ट थिंग इज इफ वी आर सीकिंग हैप्पीनेस मींस इंटरनली समवेयर वी फील कि वी आर नॉट हैप्पी, है ना, वी हैव टू डू समथिंग मोर टू बी रियली हैप्पी। हैप्पीनेस विच इज इन माई कंट्रोल मीन्स इट शुड बी माई प्रॉपर्टी, नॉट की डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। अभी तो हम हैप्पी रहने के लिए बहुत कुछ कुछ कर रहे हैं, बाहर लोगों को भी खुश कर रहे हैं, है ना, पैसा भी खूब कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट स्टिल समवेयर आई फील कि नहीं, मैं कब तक ऐसे दौड़ते रहूंगा, कब तक लोगों को खुश करता रहूंगा, कब तक मैं ये सब करता रहूंगा सिर्फ अपनी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड फिर एक पीछे एक डर रहता है कि यार अगर ये नहीं रहा कल, या ये कुछ लॉस हो गया कल, या कुछ डैमेज हो गया, है ना, तो मैं फिर कैसे हैप्पी रहूंगा, है ना। तो हम ऐसी लाइफ को जी रहे हैं। सो दैट इज द रीजन वी आर सीकिंग समथिंग परमानेंट। हाउ डू आई एक्सपीरियंस माई हैप्पीनेस? सो उसके लिए हमें कुछ नया एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू स्ट्रेच अ बिट। हमारा जो भी अभी तक का मेंटल पैटर्न्स हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी अभी, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वी अंडरस्टैंड द ट्रूथ। जो न्यू डायमेंशन होगा दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ, and this entire program is about truth and rationality only. So today we will understand one model of truth about our physical world only. इस दुनिया में हम रहते, तो सभी के पास आई होप कि कॉपी पेंसिल तो होगा ना, नोटबुक है सभी के पास, नहीं है तो ले सकते हैं अपने सामने कॉपी एंड पेंसिल, because we are going to do one activity, small activity, and this copy pencil will remain with you for more activities also around this. So we move ahead. सबके पास है ना? I need responses because ये क्या ना ऑनलाइन का यही होता है कि वो मालूम नहीं चलता है कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता मालूम नहीं चलता है, या तो चैट में लिख सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी ना वो मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा इसमें, थ्रू रिस्पॉन्सेस चैट में या बोलकर। तो ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट एक्टिविटी ये करेंगे कि यू ड्रॉ दिस बॉक्स इन योर नोटबुक।
बिग बॉक्स में भी, है ना? So done, everyone? Should I move on? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now, अभी ये जो है ना, ये इसको आप एक नाम दे दीजिए. This is your physical world. This is your world, your physical world. ठीक है? हो गया? ओके. नाउ अभी आपको फिजिकल वर्ड, आपके फिजिकल वर्ड में आप जो कुछ भी है, ठीक है, वो आप इसमें डाल दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, मे बी सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए उसके. ठीक है? इट कुड बी योर कार, इट कुड बी योर पोजीशन, इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी योर पेट्स, इट कुड बी योर हाउस, इट कुड बी the food you eat, it could be your gadgets, anything. It could be your friends, anyone. So जो आपके लाइफ का हिस्सा है वो सब आप इसमें एक एक करके डाल दीजिए, सिंबल डाल दीजिए. It can take few minutes, 2-3 minutes. We can then move ahead. हो गया? Done everyone? नहीं भी है तो बाद में ऐड कर सकते हो, अगर कुछ लग रहा है छूट गया ना तो बाद में ऐड कर लेना, बिकॉज इट्स योर नोटबुक. कभी भी ऐड कर सकते हो, कुछ छूट गया तो बाद में याद आएगा, डेफिनेटली आएगा. ठीक है, तो अभी ना ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, तो इस फिजिकल वर्ल्ड में, बिकॉज हमारी तो दुनिया ही यही है, हम किसी एक नए शहर में भी जाते हैं ना तो बहुत कुछ रिसर्च करके जाते हैं. तो अगर किसी को कोई नए शहर में जाना हो तो वो क्या क्या रिसर्च करता है? सबसे पहले तो यही देखता है कि भाई वहाँ पे अगर ड्राइव करके जा रहे हो तो वहाँ के ड्राइविंग के रूल्स क्या हैं. एंटर करते ही जिसको चंडीगढ़ आना हो तो पता लगता है कि चालान तो सभी का होता है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होते चंडीगढ़ के ट्रैफिक रूल्स. तो चालान हो जाते हैं, नॉर्मली हो जाते हैं. सो अभी तो सभी को अवेयरनेस रहता है कि चंडीगढ़ जाना है तो पहले ना ट्रैफिक रूल्स को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर भी हो जाते हैं कई बार चालान तो, है ना. और भी बहुत बहुत चीज़ें हम लोग जो है जिसको कहते हैं ना कि उस शहर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बिफोर वी एंटर इनटू दैट सिटी, सो दैट हमें कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस ना हो जाए, हम कुछ ऐसा ना कर लें, ऐसी गलती ना कर लें जिसकी वजह से हमें मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, है ना. कुछ सिटीज अनसेफ होती हैं तो उसके लिए पता होना चाहिए किस किस तरह के क्राइम्स होते हैं, तो बहुत कुछ होता है ना. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द प्लेसेस दैट वी प्लान फॉर, एंड दिस इज द फिजिकल वर्ल्ड. तो इस फिजिकल वर्ल्ड के भी ना कुछ रूल्स हैं, हमें मालूम है, बट इट्स जस्ट ए रिमाइंडर, सो दैट हम उसको अभी तक तो मालूम है, बट हम उसको कितना फॉलो करते हैं या उसके हिसाब से चलते हैं नहीं चलते हैं, वी कैन चेक, है ना.
तो इस फिजिकल वर्ल्ड का जो लॉज है या जो रूल्स हैं, द फर्स्ट रूल of this physical world is everything is unpredictable. Everything is unpredictable in this physical world. This is the rule of this physical world. अगर किसी का कोई और थॉट है तो वी कैन डिस्कस. अगर किसी को लगता है कि उसकी फिजिकल वर्ल्ड में आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी डाले हैं, आइटम्स डाले हैं, आप लोगों को लगता है कि उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वी कैन मतलब यू कैन शेयर कि हाँ किसी का दुनिया लगता है कि बहुत प्रिडिक्टेबल है. आजकल तो वैसे कुछ भी प्रिडिक्टेबल, मतलब आजकल तो ट्रम्प का ही नहीं पता लग रहा है, डेली पता नहीं क्या कुछ हुए जा रहा है. तो दिस फिजिकल वर्ल्ड इस अभी तक देखिए, कोविड तक तो फिर भी लग रहा था कि हाँ लाइफ में कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मतलब कुछ प्लान कर पाते हैं. कोविड आने के बाद तो अगर अभी हम देखते हैं तो बहुत कुछ फास्ट रेट से अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है. पहले तो सालों का सोचते थे, अभी तो कल का नहीं मालूम चल रहा है कल क्या होना है. राइट. सो राइट सर. this is the first law of this physical world. It is unpredictable, and the rate of unpredictability will only increase. अगर हम सोचें कि आगे कुछ टाइम में ये बहुत प्रिडिक्टेबल होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा. उसके रीजंस हैं, बट अभी हम यही लेके चलते हैं कि आज के हिसाब से है ना, वर्ल्ड कितना अनप्रिडिक्टेबल है. अगर हमें लगता है कि हाँ हम कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी फील इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल. इट्स अ वूका वर्ल्ड. Right? Yes, sir. And the second rule of this world is change is the only constant. इस फिजिकल वर्ल्ड में everything will change, everything is changing, even you are changing right now. हमारी बॉडी सेकंड बाय सेकंड चेंज हो रही है. एक सेकंड में पता नहीं कितने सेल्स हम लूज कर रहे हैं और न्यू सेल्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में. Similarly, everything in this physical world is undergoing this change. Change is the only constant in this world. Right? Yes, sir. And तीसरा जो कि eternal truth है, जो कि absolute truth है, everything in this physical world has a beginning and an end. This law applies to everything and everyone. These three laws apply to everything and everyone in the physical world. तो now वर्ड तो दुनिया तो वही है जैसे अभी 2 मिनट पहले थी, है ना. बट अभी अगर हम इस हिसाब से, मतलब इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अगर अभी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, राइट, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम लाइफ में अभी आगे बढ़ेंगे कि मुझे अभी मालूम है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है. अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं कुछ भी और वो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है, और वो ऐसा होगा बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल है. मैं बहुत सारी एजम्पशंस लेके चलता हूँ इस लाइफ में कि ये बंदा या ये ऐसी सिचुएशन ऐसे ही होगी, मेरे हिसाब से होगी. मैं प्रिडिक्ट करता हूँ या मैं उस हिसाब से प्लान भी करता हूँ कि वह ये करने से ये हो जाएगा, ठीक है, या ये चीज ऐसे ही रहेगी या ये इंसान ऐसे ही रहेगा, है ना. तो ऐसा होगा नहीं कभी भी. कभी भी अचानक से कुछ भी होगा. सिचुएशंस अचानक से ही आएंगी, एक्सीडेंट्स अचानक से ही आते हैं. कोविड अचानक से ही आया था, ट्रम्प भी अचानक से ही बहुत कुछ कर रहा है ना. अभी पता नहीं क्या क्या
और होना है, तो एवरीथिंग हैपन्स सडनली, कुछ प्रिडिक्ट करके नहीं आता। अगर प्रिडिक्शन इतना ही काम करते तो हम तो मतलब ये सब चीजें होती नहीं ना। तो वी हैव टू नाउ वेरी विद दिस अवेयरनेस in this world, in our world, keeping this in our mind, everything is unpredictable, ठीक है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से रखें। अगर वो हमारे हिसाब से नहीं भी हुआ है तो स्टिल आई नो कि ये तो अनप्रिडिक्टेबल है ही, why I am getting worried about it या why I am getting disturbed with this, because this is the rule। मैं इस दुनिया में उसका यही नियम है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करके चलूंगा ना। मैंने तो ये रूल नहीं बनाए हैं, हमारे हिसाब से तो दुनिया नहीं चल रही है, इस दुनिया के ये नियम है, तो मुझे तो फॉलो ही करने पड़ेंगे अगर मुझे खुश रहना है इस दुनिया में। इन नियम्स के साथ हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल, कुछ चेंज नहीं होगा एंड सब कुछ परमानेंट है मेरी लाइफ में। अगर मैं इस माइंडसेट के साथ चल रहा हूं तो मैं दुखी रहूंगा। तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इन 3 लॉज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसे होगा नहीं, ठीक है ना। अभी हमें लॉस मालूम चले तो ये लॉस को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग में ये है नहीं। हमें मालूम, नॉलेज जरूर है, बट हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है ये। प्रोग्रामिंग का हिस्सा तभी होगा जब मैं इसको अपने आप को बार बार याद दिलाऊंगा। मैं जैसे भूल जाऊंगा तो फिर मैं एक्सपेक्टेशन में फंसूंगा, आऊंगा, है ना। क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि ये तो चेंज हो रहा था, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, इसका तो एंड होना ही होना था, तो मैं एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रखता हूँ। तो अगर मैं इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता हूँ कि मैं सपोज मुझे कल कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है, ठीक है, दैट इज ए गुड प्लान, ठीक है, आई कैन प्लान फॉर इट। मैंने वो अपने किसी टीम मेंबर को दिया है प्रोजेक्ट, एंड आई एम श्योर कि वो as per his skills and as per his commitment, he will or she will be able to do it. But I have to keep this in my mind कि everything is unpredictable also. हो सकता है उसका लैपटॉप क्रैश कर जाए, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ सिचुएशन आ जाए जो कि हम मेरे प्लान का हिस्सा तो नहीं है, राइट। तो although I will plan everything, if it goes as per my plan, it is fine, ठीक है, और मैक्सिमम चीज ऐसे होंगी भी। बट अगर कुछ भी ऐसा किसी भी वजह से वो नहीं हो पाता है, विच इज बिकॉज ऑफ एनी अनप्रेडिक्टेबल रीजन, तो आई विल नॉट गिव अवे माई हैप्पीनेस टू दैट पर्सन और टू दैट सिचुएशन। बिकॉज जब मैंने प्लान किया था तो मैंने इसको ऑलरेडी फैक्टर इन किया अपने माइंड में। आई एम प्लानिंग फॉर दिस, बट आई ऑल्सो नो कि देयर आर 3 रूल्स अप्लाइंग ऑन दिस फिजिकल वर्ल्ड। अनप्रेडिक्टेबल है, चेंज हो सकता है, एवरीथिंग एज ए स्टार्ट एंड एंड। तो अगर वो कुछ प्रॉब्लम आती भी है ना, जो कि हम ना, जो विच इज नथिंग माई बट माई एक्सपेक्टेशन, है ना। मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को कल शाम तक या कल मॉर्निंग तक रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर रिपोर्ट मतलब जब तक मेरे हाथ में रिपोर्ट नहीं आई तो मैं इसलिए हूँ। आप अपनी स्थिति देखना, कभी भी आपने किसी को एक टास्क दिया है, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, और आपको पता है कि वो रिपोर्ट आपको आगे फॉरवर्ड करनी है या प्रेजेंट करनी है, तो यू आर लाइक ए स्लेव ऑफ दैट मेंबर, टीम मेंबर, और वो आपका मास्टर बना हुआ है उस समय तक। इट इज फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, इट इज फॉर द पर्सनल लाइफ ऑल्सो। बट गोइंग फॉरवर्ड आई विल कीप दिस थिंग इन माई माइंड कि ये 3 रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि मेरा प्लान के हिसाब से चलेगा, बट कई बार ऐसा नहीं भी होगा, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज दीज आर द लॉज, द रूल्स ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड।
मैं इस फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा हूं और सभी इस फिजिकल वर्ल्ड के हिस्से हैं। तो उसके लिए मुझे अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा। मैं अगर अपने इसी अवेयरनेस में रहता हूं कि हाँ ये रूल्स मुझे याद है और मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो नथिंग कैन टेक अवे माई हैप्पीनेस इन दैट केस। बिकॉज मैं एक डिजायर रखूंगा, एक्सपेक्टेशन रखूंगा, मीट फुलफिल होती है तो अच्छी बात है, नहीं फुलफिल होती है तो भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह से मैं अपनी हैप्पीनेस को लूज नहीं करूंगा। राइट, आई गेटिंग माई पॉइंट? किसी का कुछ थॉट है यहाँ पे? कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं सर, लेकिन Yeah, so Himani, can you check on, because I cannot see chat window. Uh, uh, let me try to see. Himani, are you there? So Tamanna, you want to say? Rakesh, you want to say something? नो सर, मैं पहले रेस किया था, Okay. नॉट फॉर दिस। So ठीक है, so let us move ahead with this awareness. So अब इससे क्या होता है ना, जब हम ये रूल्स, बिकॉज ये फिजिकल वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है एंड वी नो कि ना एवरीथिंग इज चेंजिंग नाउ एंड सभी चीज खत्म, सभी मतलब का एंड होना ही होना है। तो सो एक्चुअली इट बिकम्स अ हाईली इनसिक्योर वर्ल्ड फॉर अस। ऑल्दो अगर मैं उस अवेयरनेस में रहता हूँ कि हाँ, अगर मैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा हूँ कि ये रूल्स हैं, अप्लाई होते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशंस को भी सेट करूँ और एक्सेप्ट करके चलूँ, तो मेरी सिक्योरिटी वापस आती है। ऑल्दो बिकॉज आई एम इन कंट्रोल नाउ, आई नो द रूल्स, है ना। बट इफ आई एम नॉट इन दैट कॉन्शियसनेस, तो देन इट इज ए हाईली इनसिक्योर वर्ड फॉर मी। तो इससे होता क्या है, जब इनसिक्योरिटी होती है ना, तो अभी कितना टाइम है हमारे पास? If I want to go ahead with this, it will take at least 15 minutes. If that is okay, otherwise I can. we can extend for 5 minutes. 10 मिनट तो है, 5 मिनट और ले लेते हैं। Okay. Yes, sir. ठीक है, तो is that नहीं, अभी इस बिजी कर रही है। Is it visible now? Visible है? यस सर। जी सर। Okay, okay. See, अब होता क्या है ना कि because of this insecurity, because this physical world is highly insecure, so and to remain happy or to remain peaceful, we try to find security everywhere. हमें हैप्पी रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, that is security. If we are in a secure world, we are always happy. But if the world is insecure, that we have seen, it is highly unpredictable, changing, everything has start and end. So it is highly insecure world, actually, physical world. And because of that insecurity, our expectations and desires are there.
हम बिकॉज हम डिजायर भी क्रिएट इसलिए कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन भी इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सिक्योर फील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा इस पे और सोचना अभी ना इस सेशन के बाद कि हमारे डिजायर भी क्यों आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी क्यों आ रही है। कहीं ना कहीं मैं इनसिक्योर हूं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अगर इफ यू सी, अगर मैंने कोई डिजायर क्रिएट किया है एंड इट इज अनसर्टेन कि वो डिजायर फुलफिल होता होगा कि नहीं होगा। सो इफ इट इज अनसर्टेन कि इफ माई डिजायर विल बी लाइक, मैंने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखा है, किसी को कोई टास्क दिया है या कुछ भी इस तरह की मैसेज किया है ना, एंड इफ आई एम अनसर्टेन कि माई डिजायर विल बी फुलफिल्ड, तो उस दौरान है ना अनसर्टेनिटी में आई विल बी इन एंजाइटी। आई विल बी इन एंजाइटी कि फुलफिल होगा कि नहीं होगा। आई विल बी आइदर इन वरी और स्ट्रेस और विल बी इन फियर। सो दीज आर माई मेंटल स्टेट्स ड्यूरिंग दैट टाइम, जब तक कि मेरे माइंड में वो अनसर्टेनिटी है डिजायर को फुलफिल होने की। जब हम कहते हैं ना मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्यों? बिकॉज अनसर्टेनिटी है। वो अनसर्टेनिटी भी क्यों है? क्योंकि मेरा जो डिजायर है ना, मुझे मालूम नहीं है वो फुलफिल होगा कि नहीं होगा। और डिजायर के पीछे एक इनसिक्योरिटी है, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ और मेरी पूरी डिपेंडेंसी हो गई है कि मेरा डिजायर फुलफिल हो तो मैं सिक्योर फील हूँ। और जब तक वो नहीं होगा तो मैं एंजाइटी में रहूंगा, मैं वरी में रहूंगा, स्ट्रेस में रहूंगा, फियर में रहूंगा। So this is how it affects my mind also, my mental health also. और अगर मेरी डिजायर फुलफिल हुई नहीं, सपोज, ठीक है, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन रखी, मैंने कोई डिजायर रखा और फुलफिल नहीं हुआ, तो मैं सबसे पहले या तो ब्लेम करता हूँ, एंगर करता हूँ, हेटरेट करने लगता हूँ या रिवेंज लेने की कोशिश करता हूँ फिर। So this becomes our state of mind when my desire is not fulfilled. और अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता हूँ, ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, कोई ऐसी पोजीशन पे है ना, घर में या बाहर कोई बड़ा है, ऑफिस पोजीशन में भी कोई बड़ा है ऑफिस में, तो मैं उसके ऊपर ऑब्वियसली ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसको अंदर सप्रेस करता हूँ। तो सप्रेशन मीन्स आई विल गो इनटू डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस। So this is how it is converting that expectation जो कि मैंने मतलब एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखी थी, how it affects my mental health also. And similarly, if I am having multiple desires from multiple people, multiple situations, that may convert into guilt, boredom, shame, regret, and all these kind of feelings. So everything is means starting from my desire only, and desire too because I am not in a secure world. तो मुझे सिक्योर ही फील करना है इस दुनिया में रहते हुए, मुझे ऐसा कुछ सॉल्यूशन देखना है कि मैं सिक्योर फील करूं। तो अब इस सिचुएशन में अगर मेरी डिजायर फुलफिल, अगर मैं अनसर्टेन हूं तो मैं आइदर स्लेव बना रहता हूं। अगर हम पूरा अपना चेक करें, पिछले 48 आवर्स की लाइफ को चेक करें, तो वी विल फाइंड कि कितना समय मैं स्लेव बना हुआ हूँ, कितना समय मैं विक्टिम बना हुआ हूँ, मतलब मेरी डिजायर फुलफिल नहीं हुई तो मैं विक्टिम फील कर रहा हूँ, और कितने समय में बैगर बना हुआ हूँ। और ये तीनों माइंडसेट्स ऐसे हैं जो मुझे कभी हैप्पी नहीं रहने देंगे। So this is, we need to check again, getting back to this happiness. अभी मेरी लाइफ में ऊपर नीचे होता है, मुझे अभी नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं ना, इनको खत्म करना है, बिकॉज ये फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरी हैप्पीनेस लेवल को नीचे पुल कर देते हैं। वी आर ट्राइंग टू फिक्स दीज ओनली राइट नाउ। जब मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती हैं,
या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हाउ डू आई अवॉइड बीइंग अनहैप्पी, है ना। तो अगर मुझे ये इसका सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाउ डू आई गेट बैक नॉर्मली, एंड दैट इज दिस ऑप्शन नाउ वी हैव to see this word from these 3 rules. तो मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती हैं और मेरा जिसको कहते हैं ना कि बेस लाइन इम्प्रूव होता है, बेस लाइन ऑफ हैप्पीनेस। एंड दिस वोंट हैपन इन ए डे, है ना, लाइक इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर मैं अभी लिंक्डइन पे देख रहा था एक पोस्ट, अगर फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है ना, अगर 1 डिग्री का एंगल उसका चेंज हो जाता है ना, 1 डिग्री का एंगल, तो सपोज वो न्यूयॉर्क में लैंड करनी होगी, है ना, तो अगर 1 डिग्री का एंगल चेंज हुआ है तो वो पता नहीं कौन से हजारों किलोमीटर जाके दूसरे शहर में जाके लैंड करेगी, है ना। तो वी हैव टू, मतलब हमें अपनी लाइफ को भी ना ऐसे एक डिग्री, बिकॉज वी नो आवर डेस्टिनेशन नाउ, एंड ऐसा नहीं होगा कि हम एकदम से जो शिफ्ट करेंगे अपनी लाइफ को और पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें भी ना एक डिग्री से मतलब एक डिग्री मीन्स एक मिनट का अपने को रिमाइंड कराना पड़ेगा। जो भी हम यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन वी हैव सीन इज कि रिमाइंडिंग आवरसेल्फ द 3 रूल्स ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। वो हम अपने आप को जितना याद दिलाएंगे तो मेरा अवेयरनेस का लेवल बेटर रहेगा, मेरा हैप्पीनेस का लेवल भी बेटर रहेगा, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन का लेवल जो है ना बहुत कम हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट फ्री फील करूंगा, फ्रीडम रहेगा मेरे पास, बिकॉज मेरी डिपेंडेंसीज खत्म हो जाएंगी एक्सटर्नल लोगों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर। वो सपोर्ट करते हैं, फुलफिल करते हैं मेरे डिजायर्स को, तो फाइन, अदरवाइज आई एम स्टिल मूविंग ऑन विद दिस प्लान कि okay, fine, this is highly unpredictable, changing, and everything has started, and that helps a lot. Right? So any thoughts so far? So for maybe after this session, maybe you can take it as a activity. Just consciously apply these 3 laws, everything in your physical world. जो भी आपने अपने बॉक्स को ड्रॉ किया है, अगर आपको लग रहा है नहीं और कोई आइटम आ रहा है तो ऐड कर लेना, एंड देन यू शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन यू अप्लाई दिस ना। अभी क्योंकि अभी तो हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस जब आप करेंगे, मतलब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जब आपको एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी वेरी डिफरेंट, है ना। देन यू विल रियलाइज कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो अभी इतना जब आएगा, सिचुएशन आएगा ना, तो अभी से फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड ट्राई टू अप्लाई दिस इन ऑन मीन्स कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ आइटम्स उठा लेना अपने बॉक्स में से, जो कि आपको लग रहा है कि हाँ अभी आपकी एक्सपेक्टेशन है उन आइटम से, and then apply these 3 laws on that item, and then see how your perspective changes. So take it as an activity, take it as an experiment, and share your thoughts tomorrow when we meet again. And in case anyone has a thought, we can discuss. So ठीक है, can we close for today now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.